students, welcome on my video. In previous lecture we discussed transaction with capital and drawings, and I hope you all are understood. So today we are going on a new topic in this chapter, goods and assets related ट्रांजेक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन शो हो रहा है स्टूडेंट्स, बुक्स ऑफ गोकुल ट्रेडर्स. सो प्लीज़ ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर दो. क्लियर. सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी प्रिपेयर द लाइनिंग फॉर द जर्नल एंट्रीज, बुक्स ऑफ गोकुल ट्रेडर्स. First column for date, second column for particular, third column for LF number, fourth column for debit rupees, and last one column, fifth column is for credit rupees. Okay students, so let we start. 1st April 2014, April 1st. So on first date brought cash of rupees 10,000, stock of rupees 10,000 and furniture of rupees 5,000 and commenced the business. So in this transaction all things are assets for our business. Cash is assets, stock is assets and furniture is also assets and come in our business. So according to rules of debit credit, assets comes in. So cash account debit with 10,000 rupees. Second thing, stock is also our asset, so stock account debit with 10,000. Third one is furniture, so furniture account debit with 5,000. So all the things are given by the owner of the business to our business. So when owner give to anything to business, that means to capital account credit with 10,000 plus 5,000, that means 25,000. So here please note down narration for the first journal entries: cash, stock and furniture brought and commenced the business. स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे बीइंग्स नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बोल देता हूँ कि क्या होता है उसका बीइंग्स. सो प्लीज नोट डाउन कैश, स्टॉक एंड फर्नीचर brought and commenced the business. Understood students? Then next transaction, third number, goods purchase of rupees 5,000 from Mathura traders. So in this transaction, first of all economic transaction, second step is credit transaction because name of person is mentioned but cash word is not mentioned. So in this transaction, goods purchase of rupees 5,000 from Mathura traders, that means goods purchased, so goods comes in. So purchase account debit, purchase account debit with 5,000 rupees to who is the giver. So Mathura traders is the giver these goods. So Mathura traders is one type of creditors of our business. So creditors account is always credit. So to Mathura traders account credit with 5,000 rupees. Okay students, are you understood? Okay, good. Then next one is fourth number, goods sold for cash rupees 4,000. So in this transaction, goods sold, that means goods goes out from our business and cash comes in our business. Exchange of goods sold मतलब goods sold किया, उसके exchange में हमें cash receive हो रहा है. So cash comes in. So cash account debit to
sales account credit with 4,000 rupees. Next one is sixth number. Goods purchased from Rushikesh of rupees 8,000 and paid and half amount in cash. So in this transaction, students, this transaction is half cash and half credit. So what we do in this transaction, so first of all, goods purchased, that means goods comes in, so purchase account debit, rupees 8,000, and out of 8,000 half amount is paid in cash, that means cash goes out, so to cash account credit with 4,000 and remaining half amount is remaining to paid. मतलब अभी भी 4,000 रुपीज़ अभी हमें पेड करना रिमेनिंग है, दैट मीन्स ऋषिकेश हो गया वो हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर्स हो गया हमारे लिए. सो टू ऋषिकेश अकाउंट क्रेडिट, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे डेबिट नहीं होगा बट ये अकाउंट क्रेडिट होगा. सो जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज परचेस अकाउंट डेबिट विथ 8,000, टू कैश अकाउंट क्रेडिट विथ 4,000, टू ऋषिकेश अकाउंट 4,000. क्लियर. हाफ अमाउंट हमने पेड कर दिया और हाफ अमाउंट अभी भी हमें पेड करना रिमेनिंग है, दैट मीन्स ऋषिकेश हमारे लिए क्या हो गया, वन टाइप ऑफ क्रेडिटर्स हो गया. क्लियर स्टूडेंट्स. देन नेक्स्ट पॉइंट, seventh number, goods of rupees 1,600 returned to Mathura traders. So in previous transaction we purchased the goods from the Rishikesh, and in third number transaction we purchased the goods from the Mathura traders on credit. So in this transaction goods return, that means here purchase return. So in purchase return, goods goes out from our business, understood. So purchase return account credit, and which one account is debit, so who is the receiver these goods, so Mathura traders is the receiver. So Mathura traders account debit to purchase return account credit with 1,600. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. हमने थर्ड नंबर में क्या किया था, मथुरा ट्रेडर्स के पास से गुड्स परचेस किया था. आउट ऑफ 5,000 on 7 date we return the goods to Mathura traders. So Mathura traders is the receiver and purchase return, that means goods हमारे पास से गया. So according to rules of real accounts, goods goes out from our business, so purchase return account is credit. Understood students. Then next one is ninth number. So ninth number, goods of rupees 600 given for Prime Minister Relief Fund. So in this transaction first of all goods given as a donation, क्योंकि हमने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया है, तो वन टाइप ऑफ डोनेशन हुआ स्टूडेंट्स हमारा. क्लियर. सो इन दिस ट्रांजेक्शन डोनेशन मतलब हमारा वन टाइप ऑफ लॉस हुआ कि हमें उसके एक्शन में कुछ भी मनी रिसीव नहीं होगा, तो भी हमारा गुड्स हमारे बिजनेस में से रिड्यूस हो रहा है. सो हियर डोनेशन अकाउंट डेबिट, डोनेशन अकाउंट debit with 600 rupees to purchase account credit with 600 rupees. Clear. So यहाँ परचेस अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, सो बिकॉज ये जो गुड्स हमने डोनेशन में स्टूडेंट्स दिया है वो हमने कभी इन पास्ट हमने परचेस तो किया ही होगा, सो वही परचेस अकाउंट हमने क्या किया है यहाँ पे क्रेडिट किया है. कीप इन योर माइंड दिस थिंग कि कभी भी आप
कोई भी गुड्स सोल्ड करते हो तो उस टाइम पे आपका सेल्स अकाउंट आता है। बट ऐसी कोई कंडीशंस होती है कि जिसमें आप सोल्ड नहीं करते हो फिर भी आपके बिजनेस में से गुड्स जा रहा है, दैट मीन्स गुड्स गोज आउट फ्रॉम आवर बिजनेस विदाउट सेल्स, सो एट दैट टाइम परचेस अकाउंट इज क्रेडिट। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट 15th नंबर ट्रांजेक्शन, goods of rupees 4000 is destroyed due to sinking of steamer for which insurance company has admitted claim of rupees 50% amount। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हुआ स्टूडेंट्स, लॉस हुआ है सिंकिंग में। सो 4000 रुपीज़ का गुड्स था, उसमें से 50% का हमें इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिटेड किया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, देन लॉस ऑन गुड्स destroyed अकाउंट डेबिट टू, अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा गुड्स गया है बट विदाउट सेल्स, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने रुपीज़ का गुड्स हमारा टोटल स्टूडेंट्स डिस्ट्रॉय हुआ है, सो 4000 रुपीज़ का। क्लियर? 4000 रुपीज़ में से इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितना क्लेम एडमिटेड किया है, 50%, दैट मीन्स 2000 रुपीज़ हमें इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर देंगे। सो हमें एक्चुअली में कितना लॉस हुआ स्टूडेंट्स, सो लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉय अकाउंट डेबिट विथ 2000, टोटल हमारा 4000 रुपीज़ का गुड्स गया हुआ है, लॉस हुआ है, उसमें से 2000 रुपीज़ इंश्योरेंस प्रीमियम ने हमें क्लेम रिफंड कर दिया है। सो अब एक्चुअली में हमारा लॉस कितना होगा, 2000 रुपीज़। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? देन नेक्स्ट वन इज 16th नंबर, सो गुड्स ऑफ रुपीज़ 500 गिवन एज अ डोनेशन। सो अगेन 9th नंबर में जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे स्टूडेंट्स करना है। सो हियर अगेन डोनेशन इज द वन टाइप ऑफ लॉस ऑफ आवर बिजनेस, सो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू again purchase account credit because these goods goes out from our business but without sales, so donation account debit with 500 rupees to purchase account credit with also 500 rupees। understood students? so narration note down कर दो, goods given as a donation। next one is 20th number, goods of rupees 200 distributed as a free sample for advertisement purpose। अब यहाँ पे हमने 2000 रुपीज़ का गुड्स स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किया है एज अ एडवर्टीजमेंट पर्पस। सो यहाँ पे अगेन गुड्स गोज आउट फ्रॉम आवर बिजनेस विदाउट सेल्स। सो हियर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट है वो हमारे लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, वन टाइप ऑफ लॉस होगा, बिकॉज एडवर्टीजमेंट जो हम लोग कर रहे हैं उसके एक्सचेंज में हमें मनी रिसीव नहीं हो रहे बट हमारा गुड्स जा रहा है हमारे बिजनेस में से। सो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, टू परचेज अकाउंट क्रेडिट विथ 200 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है कि जो भी अब हमारा पेज ख़त्म होगा यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये पेज पे जितनी भी हमारी जर्नल एंट्रीज नोट डाउन हुई है स्टूडेंट्स उसका हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर देंगे और यहाँ पे हमें ऐसे मेंशन करना है टोटल डबल लाइन करके। सो लेट वी डू द टोटल ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। सो टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम इज 48,900 rupees। clear? and this amount is carried forward। ओके, नेक्स्ट पेज पे हमें ये जो अमाउंट है उसको कैरिड फॉरवर्ड करना है।
सो जो हमने प्रीवियस पेज का जो टोटल था वो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ब्रॉड फॉरवर्ड कितना था स्टूडेंट्स, 48,900. सो हियर वी मेंशन टॉप ऑफ द पेज, यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में ही वो बैलेंस नोट डाउन कर देना है. देन लेट वी सॉल्व रिमेनिंग ट्रांजेक्शंस. सो 22 नंबर, goods of rupees 400 received as a free sample for the manufacturer. अब 22 नंबर में क्या स्टूडेंट्स, हमने गुड्स रिसीव किया है फॉर अ फ्री सैंपल, और किसके पास है, मैन्युफैक्चरिंग. तो यहाँ पे हमें गुड्स आया हुआ है बट उसके एक्सचेंज में हमने कुछ भी पेड नहीं किया है. दैट मीन्स दिस ट्रांजेक्शन इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. क्लियर, हमें सिर्फ रिसीव है, उसके एक्शन में हमें कुछ भी पेड नहीं किया है. नेक्स्ट वन इज 25th, गुड्स रिसीव्ड ऑन 22nd सोल्ड एंड रियलाइज 300 रुपीज़. अब 22nd डेट को जो हमें गुड्स रिसीव हुआ है स्टूडेंट्स 400 का एज अ फ्री सैंपल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. दिस गुड्स वी सोल्ड ऑन 25th डेट एंड रियलाइज 300 रुपीज़. दैट मीन्स 25th को क्या हुआ है स्टूडेंट्स, जो गुड्स हमें मिला वो हमने सेल्स कर दिया है. सो सेल्स किया है तो हमें रियलाइज कितना हुआ, ₹300. सो कैश कम्स इन. सो कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स हमने सोल्ड किया है, सो टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट विथ 300 rupees. Okay students, then next one is 28, goods of rupees 1500 is destroyed by fire. Insurance company has admitted claim of rupees 900 and rupees 200 realized from the scrap of these goods. तो सबसे पहले तो ये ट्रांजेक्शन हमें अच्छी तरीके से समझना होगा स्टूडेंट्स. सो 1500 रुपीज़ का हमारा गुड्स टोटली डिस्ट्रॉय हुआ है. सो परचेस अकाउंट कितने रुपीज़ से क्रेडिट होगा स्टूडेंट्स, 1500 रुपीज़ से. गुड. देन इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एडमिटेड क्लेम ऑफ रुपीज़ 900. अब 1500 के गुड्स में से 900 रुपीज़ हमें इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कर दिया है. क्लियर. देन ₹200 रियलाइज फ्रॉम द स्क्रैप ऑफ दिस गुड्स, मतलब जो गुड्स हमारा डिस्ट्रॉय हो गया उसको हमने स्क्रैप में दिया. सो स्क्रैप में दिया जो 1500 का गुड्स, उसके एक्सचेंज में हमें कितने रुपीज़ रियलाइज हुए, 200 रुपीज़. सो इन 28th नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी हैज़ एडमिटेड क्लेम. So first of all insurance company account debit, then loss on destroy goods, goods account debit. then हमने स्क्रैप में जो गुड्स दिया उसके भी रियलाइज हुए. सो कैश कम्स इन. सो कैश अकाउंट ऑल्सो डेबिट टू परचेस अकाउंट क्रेडिट. सो हाउ टू पुट द वैल्यू. सो टोटल डिस्ट्रॉय गुड्स इज 1500. सो परचेस अकाउंट क्रेडिट विथ 1500 rupees. Then insurance company has admitted claim 900 rupees. 900 rupees insurance company account debit with 900 rupees. Then rupees 200 realized from the scrap of these goods. That means cash account debit with 200. So remaining amount 400. दैट मीन्स 1500 का स्टूडेंट्स हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ था, उसमें से हमें एक्चुअली में लॉस कितना हुआ है, ओनली 400 रुपीज़ का. बिकॉज आउट ऑफ 1500 ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड 900 रुपीज़ एंड स्क्रैप रियलाइज रुपीज़ 200. सो हमें एक्चुअली में कितना 400 रुपीज़ का ही लॉस हुआ है. क्लियर स्टूडेंट्स. देन लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस सम
goods of rupees 600 destroy in rain which is sold for 200 rupees. So again this transaction similar to previous transaction. So total goods destroy 600 rupees and realize rupees 200. That means first of all we mention the loss on destroy goods account. Destroy goods account डेबिट विथ वो अमाउंट हम लोग लास्ट में नोट डाउन करेंगे. देन हमने सोल्ड किया सो उसके 200 रुपीज़ रियलाइज हुए. सो कैश अकाउंट ऑल्सो डेबिट बिकॉज कैश कम्स इन आवर बिजनेस. 2 अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, गुड्स गोज आउट फ्रॉम आवर बिजनेस विदाउट सेल्स. सो 2 परचेस अकाउंट. सो टोटल कितने रुपीज़ का गुड्स हमारा डिस्ट्रॉय हुआ स्टूडेंट्स, 600. सो टू परचेस अकाउंट क्रेडिटेड विथ 600 रुपीज़. आउट ऑफ 600 200 रियलाइज व्हेन वी सोल्ड दिस गुड्स. सो रिमेनिंग 400 रुपीज़ इज एक्चुअल लॉस. हमें 600 का गुड्स हमारा गया है बिजनेस में से, उसमें 200 रुपीज़ तो हमें सोल्ड किया सो रिफंड हो गए. सो रिमेनिंग कितने 400 वो हमारे बिजनेस का क्या हुआ है, एक्चुअली लॉस हुआ है. क्लियर स्टूडेंट्स. सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा सम क्लियर हो गया. अब हम करेंगे टोटल. सो टोटल के लिए अगेन हम लोग लाइन प्रिपेयर कर लेते हैं. आपको ईच एंड एवरी टाइम टोटल में आपको डबल लाइन मेंशन करनी है बिलो में. ओके स्टूडेंट्स. सो टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम इज 51,300 and credit is 51,300. Okay students, so here our sum is completed and I hope you all are understood. If you have any doubt, so please comment on this video. Thank you.